Hi and a very good afternoon to all of you. Welcome to ADA 247. This is Arushi here and today I'm going to discuss a very important burning issue. इंटरनेट पे सब जगह वायरल हो गया है, इंटरनेट पे सब जगह वायरल हो गया है, द विजिट ऑफ यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी टू ताइवान. सो बेसिकली क्यों वायरल हुआ है, क्या है इशू, हु इज Nancy Pelosi. Other than the fact that we know that she ranks third, US President, US Vice President के बाद third in rank in the office of the United States of America में जो आता है, that is US House Speaker, and she is presently chaired by Miss Nancy Pelosi. तो who is she basically? उनका political career क्या रहा है, history क्या रही है? Let's learn about it. But before we learn about it, before we know about it, let me tell you guys, एक और चीज आप लोग वायरल कर दो. Just make sure that you viral one more thing on the internet, that is हमारे जितने भी offers चल रहे थे अड्डा 247 के website पे. If you go to all courses and if you want to subscribe to Bank Mahapack, इस पे पहले 1 साल की वैलिडिटी थी. नाउ इट इज अवेलेबल फॉर डबल वैलिडिटी पीरियड. इसमें आपको मिलेंगे recorded live lectures, test series and all of that stuff that you need to crack your exam. So actually, it is a very cost benefit solution that we are offering to you guys, wherein you can have access to paid almost all the recorded courses as well as टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो सब आपको अवेलेबल रहेंगे जस्ट इन 1 year सब्सक्रिप्शन. Y580 आप कोड यूज करोगे, Y580 इफ यू विल यूज द कोड Y580 यू विल गेट अ 77% ऑफ. आपको 77% ऑफ मिलेगा व्हेन यू विल यूज द कोड Y580. ठीक है, सो मेक श्योर to spread the word among your peers, colleagues and friends. In any case, anyone who needs any course from the entire ADDA 247 website, अगर आप Y580 code use करोगे, you will get a 77% off. ठीक है, now let's get back to the topic. Who is Nancy Pelosi? See, right now she is serving as the House of Speaker in the United Nations, and despite Chinese warnings to the US, Chinese Premier Xi Jinping and US President Joe Biden के बीच में मीटिंग हुई थी, wherein the Premier warned Joe Biden against the visit by the US House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan. Okay. Exactly what the president said was, do not play with fire. These were his exact words in the video conference and the call. Okay, these were his exact words, do not play with fire. So basically क्या है ताइवान इशू, क्या है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नैंसी पेलोसी कौन है. In her political career as a US congresswoman, when she was a US congresswoman in her political career, basically she raised a powerful voice against human rights violation in China. She raised a powerful voice against human rights in China. Especially Tiananmen Square का जो violence हुआ था, उसके second decade में उसको observe करने के लिए, उसका to observe the massacre by the Chinese government in the Tiananmen Square on the students and people who were protesting and fighting for democracy in China. उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, मैसाकर हुआ था लार्ज स्केल पे. तो in 2002 along with 2 other US politicians, she actually went to that place, exactly Tiananmen Square, and she raised a banner for all those who died for democracy. So she has consistently been a powerful voice for human rights in China. चाहे वो ताइवान का इशू हो या फिर तिब्बत का इशू हो, नैंसी पेलोसी हैज कंसिस्टेंटली बीन अगेंस्ट चाइनीज ह्यूमन राइट्स इन्फ्लिक्शंस. तो बेसिकली even in Tibet, Nancy Pelosi awarded His Holiness Dalai Lama with a gold medal for his policy support and advocation towards human rights in China. ठीक है, towards Tibet, basically Tibet autonomous region के cause को promote करने के लिए भी Nancy Pelosi has partnered with and supported Dalai Lama through and through. ठीक है, so this is basically the history. चाइना जब WTO ज्वाइन करने जा रहा था, then also it was Nancy Pelosi only who raised a very strong voice and warned the World Trade Organization that if China joins
the WTO without the consent of the US will withdraw from WTO. That is the World Trade Organization. So that is actually, US still has a strong hand in that intergovernment organization for the namesake. So at that time when it was happening, it was very, very significant. जब Olympics को headquarters बनाया जा रहा था, जब Olympics host करने जा रहे थे चाइना में, तो भी पेलोसी ने वर्ड उठाया था, वार्निंग अगेन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट चाइना जैसी कंट्री ओलंपिक्स को कैसे होस्ट कर सकती है जब उसके अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स क्राइसिस के इतने सारे इश्यूज हैं. So yes, she has been through and through a strong advocate. So the image that you are seeing, September 4, 1991, this is the second decade of the Tiananmen Square massacre, जिसको observe करने नैंसी पेलोसी पहुंची थी चाइना along with her 2 political colleagues. So this is what the history is about China. She has supported Dalai Lama. She has supported Dalai Lama or in his fight for Tibetan autonomous region, fight for democracy, fight for human rights. ठीक है. तो yes, she is very important also when it comes to India. India भी Tibet को as a Tibetan autonomous region consider करता है and not as a part of China. Wherein China considers Tibetan autonomous region as well as Taiwan as a part of its own country, extended territory under the One China policy rule. In fact, Taiwan, we call it Taiwan. China calls that region as a Republic of China. Mainland China is known as People's Republic of China. Taiwan is known as just the extended Republic of China. Okay, so that is the importance, that is the gravity of the issue कि US House Speaker has officially visited China. She has officially landed in Taiwan despite the Chinese warnings that were issued to the US government. So इसके implications क्या है चाइना और ताइवान के डिवाइड की हिस्ट्री क्या है, पहले ये जान लेते हैं. सो काफ़ी टाइम तक ताइवान रीजन किंग डायनेस्टी से रूल होता था. किंग डायनेस्टी, काफ़ी सारी डायनेस्टीज थी मेनलैंड चाइना उसके आसपास के रीजन्स में, तो ताइवान को जो रूल करता था दैट वाज किंग डायनेस्टी. 1890s के अराउंड 1890s द कंट्रोल ऑफ ताइवान वेंट ऑन टू द जापानीज. 1890s Japan used to control Taiwan. Come forward World War II हुआ तो ताइवान का जो कंट्रोल था, जो जापानीज कंट्रोल था ताइवान के ऊपर, दैट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना. And then come again 1970s Mao Zedong ruled China. ठीक है. What basically happened 1970s में during the Mao Zedong rule in China? People started to protest against the Communist Party rulers ruled by Mao Zedong. There were advocates for democracy in Taiwan, जो कि Kuomintang rebellions थे, nationalists थे, also known as Kuomintang. They advocated for democracy. There was a civil war हुआ तो जितने भी nationalist group के जो leaders थे, they found solace, उनको refuge मिल गया था ताइवान में. ताइवान ऑफ कोस्ट, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है 160 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट इन चाइना. ठीक है, बॉर्डर करता है जियानमिन जैसे बड़े चाइनीज डिस्ट्रिक्ट्स को ये बॉर्डर करता है. एंड इट इज स्ट्रैटेजिकली, छोटा सा आइलैंड है बट स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है चाइना के लिए. ठीक, सो हियर यू कैन सी कि प्रॉब्लम क्या है कम्युनिस्ट पार्टी की. आफ्टर दैट जब नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स ताइवान में सेटल हो गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा अपनी डेमोक्रेसी और अपनी इंडिपेंडेंस, राइट टू सेल्फ रूल के लिए वी विल ऑलवेज कंसिस्टेंटली बीन फाइटिंग. चाइना सेज कि इफ एवर ताइवान अपने आप डिक्लेरेशन कर देता है इंडिपेंडेंस का या सॉवरेनिटी का, गुड आफ्टरनून मैम. सो अगर चाइना डिक्लेयर कर देता है फॉर हिज इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी, व्हाट हैपन्स देन? वेल, then in that case China has issued a warning that it will, वो ताइवान के ऊपर क्या कर देगा यार, हमला कर देगा. Of course it will take a suo moto action to do anything to prevent Taiwan to declare its independence from China on its own. ठीक है,
तो क्या इससे पहले भी, अभी तो नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया है चाइना को, पर क्या इससे पहले भी कोई यूएस का हाउस स्पीकर चाइना विजिट कर चुका है? वेल, इन 1977 sorry, I think 1997. I'm confusing the date, guys. 1997 exactly. Newt गिंगरिच जो कि यूएस के हाउस स्पीकर थे, जो कि यूएस गवर्नमेंट के हाउस स्पीकर थे इन 1997, ही विजिटेड ताइवान और उनकी विजिट के साथ साथ यूएस के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेरेशन किया कि अगर चाइना कोई सुओ मोटो मिलिट्री एक्शन लेता है ताइवान के ऊपर तो यूएस विल डिफेंड ताइवान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो 1997 में सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट एंड यूएस हाउस स्पीकर दोनों ने बोला था। और अब come forward to 2022, Joe Biden is again repeating the dialogue, US will protect China. तो किस बेसिस पे जो बिडेन कह रहे हैं कि US will protect China? Why is he actually saying so? बेसिस क्या है? देखो, पहले एक चीज समझ लो, 1970 से लेके 2002 एक गोल्डन पीरियड था चाइनीज इकोनॉमी के लिए, ठीक है। 1997 से लेकर 2002 तक चाइना में आया इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक बूम, जिसके अंडर चाइना ने ये क्लेम किया, ये कहा कि किसी भी कंट्री को अगर चाइना के साथ इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करने हैं और बनाए रखने हैं तो उसको ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ने होंगे एज अ सेपरेट कंट्री। It has to break off all the ties with Taiwan as a separate country and it has to accept one China policy. One China policy accept करनी पड़ेगी अगर किसी भी कंट्री को चाइना के साथ इस डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करने हैं। तो इसके बाद से क्या हुआ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज सीवर कर लिए, दैट इज तोड़ दिए, ठीक है। एंड नाउ अगर कोई कंट्री चाइना के साथ डायरेक्टली बायलैटरल रिलेशन में है तो कंसिडर किया जाता है दैट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ताइवान बिकॉज चाइना इज अ पार्ट ऑफ ताइवान। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वन चाइना पॉलिसी इज ऑल अबाउट, ठीक। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइना व्यूज एज वन चाइना पॉलिसी एंड हाउ यूएस व्यूज एज वन चाइना पॉलिसी। अब यूएस की भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, वो ये हैं कि नाटो के जो एलाइज हैं यूएस के, नाटो मेंबर्स तो है ही हैं, नाटो एक अग्रीमेंट है, तो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक अग्रीमेंट है जिसके अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नाटो बेसिकली सेज कि नाटो मेंबर्स एंड नाटो एलाइज के ऊपर कोई आउटसाइड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी अटैक करती है तो सारे के सारे नाटो मेंबर्स विल डिफेंड दैट पार्टी। यूएस सेज द सेम थिंग in for Taiwan, Japan and South Korea. जापान, साउथ कोरिया और ताइवान के लिए यूएस कहता है कि अगर किसी कंट्री ने इन मेंबर्स के ऊपर अटैक किया तो यूएस विल टेक अ स्टैंड एंड डिफेंड दीज कंट्रीज। अदर देन दैट, ताइवान रिलेशंस एक्ट चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश करने के लिए, वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने 1979 में एक्ट पास किया, ताइवान रिलेशंस एक्ट। नाउ ताइवान रिलेशन एक्ट कंसिडर्स ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना फॉर डिप्लोमेटिक इश्यूज, चाइना को दिखाने के लिए कि हाँ हम मानते हैं तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी। बट हियर इज अ कैच, सेक्शन 3 ऑफ ताइवान रिलेशंस एक्ट बेसिकली सेज कि अगर सेक्शन 3 देख लो, अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करता है तो यूएस विल डिफेंड चाइना। ये पेंटागन भी एक्सेप्ट करता है, आउटवर्डली बोलता नहीं है बट बहुत बार यूएस ने डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग करी है, इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। द टर्म, द की वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज नोन एज स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग गाइस। स्ट्रैटेजिक सिग्नल क्या होता है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को $5.1 बिलियन का एक्सटेंशन दिया टू अपग्रेड इट्स डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। F-16
F-16 एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ने ताइवान की हेल्प करी। थियोडर रूजवेल्ट की वॉरशिप ताइवान एंड साउथ चाइना सी के आसपास अभी भी मॉनिटर करती है सिचुएशन को टू एंश्योर अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन द साउथ पैसिफिक रीजन। उसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स यूएस ने ताइवान को, और सिर्फ ताइवान को ही नहीं, साउथ कोरिया को भी, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा थार्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये एक्चुअली एक मिसाइल सिस्टम है जो यूएस ने साउथ कोरिया को एडवांस किया है। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या है, इंटरेस्ट क्या है यूएस का, अब आपके समझ में आ रहा है कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। सो द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट लाइज इन द साउथ पैसिफिक ओशन, रूल बेस्ड ऑर्डर इन द साउथ पैसिफिक ओशन। आप क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग देख लो। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या कंडक्ट करवाता है गाइस, मालाबार एक्सरसाइज। कौन कौन मेंबर्स है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया। एंड मालाबार एक्सरसाइज सिर्फ इन 4 नहीं, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, काफी सारी कंट्रीज टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द साउथ पैसिफिक ओशन। चाइनीज का एक्सर्शन बहुत ज्यादा है, एग्रेशन है। चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है, एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए, ठीक है, ऑकस एक ऑर्गेनाइजेशन है, AUKUS, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का पैसिफिक जोन में एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑकस, जिसको पैसिफिक रीजन का नाटो भी बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो अ स्टेप बाय द यूएस टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द पैसिफिक ओशन। तो अगर आप मैप देखोगे चाइना और यूएस का, तो अटलांटिक ओशन ऑफ कोर्स यूएस, यूरोप, अफ्रीकन, इन सारी कंट्रीज के बीच में आता है, बट पैसिफिक ओशन इज बेसिकली व्हाट डोमिनेट्स द स्ट्रैटेजिक प्लेग्राउंड बिटवीन चाइना एंड यूएस। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट चाइना, यूएस चाइनीज प्रेजेंस को डोमिनेट करे, काउंटर करे इन द पैसिफिक रीजन फॉर अ रूल बेस्ड ऑर्डर। वो तो कहने की बात है रूल बेस्ड ऑर्डर, बट चाइना एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली China was the center of the world. In the ancient history, China was the center of the world, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो मिलिट्री, डिफेंस, कोई भी बायलैटरल रिलेशन की बात हो। सिल्क रूट था, बहुत ग्लैमरस उसकी एंशिएंट हिस्ट्री हुआ करती थी, एंड चाइना इज ट्राइंग टू रिवाइव दैट राइट नाउ इन 2022, trying to take advantage of the situation. Belt and Road Initiative, Sri Lanka का economic crisis, all the root cause is basically China. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसके थ्रू चाइना धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस के थ्रू अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस भी बाकी सारी कंट्रीज में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी वो एक बहुत ही बड़ा और प्रोमिनेंट थ्रेट है। ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंस है वन चाइना पॉलिसी का एज फार एज चाइना वर्सेस यूएस इज कंसर्न्ड। ठीक, अब ये जो डिफेंस एक्सटेंशन है, जो डिफेंस सपोर्ट है, that the same dialogue is being repeated, the same policy डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में जो पॉलिसी स्टार्ट हुई थी विद ताइवान, the same policy is being carried forward by प्रेसिडेंट जो बिडेन। ओके, प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बहुत बार एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि एक्चुअली है क्या, यूएस का स्टैंड है क्या। पहले यूएस का स्टैंड समझ लेते, फिर देख लेते कि इंडिया के इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज एक्चुअली सेड दैट ताइवान अग्रीमेंट का तक यूएस लिव अप करेगा। नाउ ही यूज्ड द वर्ड ताइवान अग्रीमेंट। जितने भी फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स थे गाइस, they scratched their heads over and over again about this Taiwan agreement कहाँ से आया। ताइवान रिलेशंस एक्ट समझ में आता है, ताइवान पॉलिसी वो भी सबको पता है, बट ताइवान अग्रीमेंट जैसा कभी किसी ने कुछ सुना ही नहीं। And US President Joe Biden has used this term at least 2 to 3 times while being in office, while being as a president of the United States, that is. तो ताइवान अग्रीमेंट क्या है? बेसिकली यूएस ये इंडिकेट करना चाह रहा है बाय यूज ऑफ दिस टर्म लाइक ताइवान अग्रीमेंट दैट यूएस स्टिल स्टैंड इट्स ग्राउंड, दैट द यूएस विल डिफेंड चाइना, यूएस विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट एनी फ्यूचर चाइनीज इन्वेजन।
तो ये इसका मेन फैक्ट है, ये इसका मेन मुद्दा है पॉलिसी का। ओके, नाउ आप समझ लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है ऑन वन चाइना पॉलिसी। देखो, रेसिप्रोकल बेसिस पे इंडिया सपोर्ट करता है वन चाइना पॉलिसी को, बिकॉज हमको पता है कि चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर है और अभी भी हम लोग वी आर लीप्स एंड बाउंड्स बिहाइंड चाइना व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एक्सपर्टीज। ओके, सो इन दैट केस सिनेरियो इंडिया कहता है कि यस, वी विल एक्सेप्ट वन चाइना पॉलिसी ऑन द प्रोविजन कि चाइना भी एक्सेप्ट करे वन इंडिया पॉलिसी को। वन इंडिया पॉलिसी क्या है गाइस? अक्साई चिन चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का 80,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया चाइना के इन्फिल्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाल रहा है। सो बेसिकली चाइना वांट्स कि हम लोग उसकी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, बट इट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वन इंडिया पॉलिसी, इट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर ओन सॉवरेनिटी। तो द क्वेश्चन इज क्या इंडिया को शुड इंडिया सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द स्टैंड इन चाइना, ऑन द स्टैंड अगेंस्ट चाइना? क्या इंडिया को यूएस को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, या फिर इंडिया शुड सपोर्ट चाइना? ऑफ कोर्स इंडिया शुड नॉट सपोर्ट चाइना। चाइना बेसिकली, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से चाइना लेकर जा रहा है पाकिस्तान में, और डायरेक्ट स्ट्रेट अप टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड यूरोप। ठीक है, नाउ दैट एब्रोगेट्स द sovereignty and integrity of our country. अक्साई चिन रीजन को चाइना ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के 80,000 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर डाउनस्ट्रीम रिवर है, डाउनस्ट्रीम स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। चाइना वाटर वॉर करता है वहाँ पे इंडिया के साथ बाय कंस्ट्रक्टिंग मेजर डैम्स ओवर द रिवर, ताकि डाउनस्ट्रीम फ्लो कम हो जाए। ठीक है, अब बारी आती है श्रीलंका में क्या चल रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका ने ले रखा है लोन चाइना से। यहाँ पे हम्बनटोटा एयरपोर्ट and Hambantota port has been constructed by China. A lot of billions and billions of loans have been imposed on Sri Lanka by China. अगर श्रीलंका डिफॉल्ट कर जाता है उन लोन्स पे, गुड आफ्टरनून विशाल, अगर श्रीलंका डिफॉल्ट कर जाता है उन लोन्स पे तो चाइना क्या कर लेगा? उसके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी इम्पोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी चाइना इंडिया को घेर रहा है, यहाँ से भी चाइना इंडिया को घेर रहा है। नॉर्थ ईस्ट को भी चाइना माओइस्ट को सपोर्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के रूट से माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को चाइना फंड और सपोर्ट करता है। सो बेसिकली चाइना इज ट्राइंग टू घेरो इंडिया फ्रॉम ऑल द साइड्स, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करके। ठीक है, एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करके। तो ऑफ कोर्स इंडिया शुड एक्चुअली सपोर्ट द यूएस गवर्नमेंट। क्यों? जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एक ऑटोनॉमस एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके, डिड चाइना सपोर्ट इंडिया? यू टेल मी, क्या चाइना ने आर्टिकल 370 के इशू के ऊपर कभी भी इंडिया को सपोर्ट किया? ऑफ कोर्स नहीं किया। So why should we? That is the question. So yes, एक reciprocal basis होता है। जब China does not support the One India policy, then India should also not support the One China policy. Of course, and of course, ताइवान के साथ इंडिया ने अपने सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म नहीं किए हैं, बिकॉज दे डू हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इंडिया में, और इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है कहाँ पे गाइस? ताइवान में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स, साउथ चाइना सी का रीजन है ये, और यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना ने, यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं स्पार्टले, पार्सल, स्कारबरो शोर, these are names of some of the artificial islands that have been established by China. इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को चाइना यूज करता है अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को चाइना यूज करता है। अब यही बात यहाँ पे वापस आ जाता है इंडिया पे। यहाँ पे क्या है? वेस्ट एशिया पे यहाँ पे आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री है जिबाउती। जिबाउती में भी चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है जो कि इंडिया के रीजनल इंटेग्रिटी इन द अरेबियन सी को भी थ्रेट करता है। तो चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, चाहे वो अरेबियन सी हो, वहां पे भी चाइना ने अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन दिस, एक आइलैंड है कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड्स भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं जो कि अंडमान निकोबार के पास चाइना ने अपना आर्टिफिशियल आइलैंड इस्टेब्लिश किया हुआ है एंड हैज बीन यूजिंग दिस एज अ मिलिट्री बेस। तो इंडिया का डोमिनेंस को काउंटर करता है, काफी स्ट्रांगली काउंटर करता है इंडियन ओशन रीजन में चाइना। So that is a very major threat. It is actually a major threat to India. It is a major threat to India. चाहे जियो स्ट्रैटेजिक टाइज हो, चाहे ट्रेड रूट्स हो, चाहे एनर्जी सप्लाई के जो रूट्स हैं, उन सब के लिए चाइना it is a major threat to India. But are there any arrangements? क्या कोई डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है? अगर कोई यूएस और चाइना के बीच में, मान लो जब ट्रेड वॉर चल रहा था, देन ऑल्सो इंडिया वॉज सैंडविच्ड। अभी यूएस और चाइना के बीच में फिर से एक वॉर होने की संभावना है, सो देन ऑल्सो यूएस इज गेटिंग सैंडविच्ड। और अब तो यूएस चाइना के टेंशंस, ट्रेड वॉर एक प्रॉक्सी वॉर हुआ करता था। ट्रेड वॉर वॉज एक्चुअली अ प्रॉक्सी वॉर in place of an actual war. But now after Russia-Ukraine crisis, I think countries are becoming more and more adamant, more and more stubborn to take on a full-fledged war with each other. अब फुल फ्लेजेड वॉर की संभावना हो चुकी है। वो प्रॉक्सी में ट्रेड वॉर करने वाला सिस्टम अभी खत्म होता हुआ हमको नजर आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर थ्रेट। एनर्जी सप्लाई रूट्स, ऑयल सप्लाई रूट्स, ट्रेड रूट्स, वो सारे चाइना अगर टेक ओवर कर लेगा तो इंडिया क्या हो कर जाएगा यार। इंडिया विल अल्टीमेटली हैव टू डिपेंड ऑन चाइना टू सिक्योर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। तो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। तो इस सेशन से व्हाट आर सम ऑफ द की टेक अवेज फ्रॉम द फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की टेक अवेज क्या है गाइस? What are the key takeaways? Number 1, Malabar exercise, AUKUS, NATO, Taiwan Relations Act. ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यूएस और चाइना के स्ट्रैटेजिक टाइज के बीच में। अब आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना का एक ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट वेर इन चाइना एंड इंडिया हैव अ रूम टू सेटल देयर डिफरेंसेस, सेटल देयर ओन डिफरेंसेस, ठीक है। सो लेट अस सी, will this escalate into a war or not? क्या जैसा लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, will this convert into a World War 3? बिकॉज अगर चाइना और यूएस जैसे 2 मेजर सुपर पावर्स, 2 मेजर न्यूक्लियर सुपर पावर्स जो कि दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, अगर वो आपस में वॉर करने लग जाएं, what will be its implications for India? Of course directly इफेक्ट करेगा। So let us see what future holds for us आफ्टर द रशियन यूक्रेन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आया रशियन यूक्रेन क्राइसिस, और अब अगर पोटेंशियल वॉर हो गया यूएस और चाइना के बीच में, देन हाउ विल वी डील विद इट इकोनॉमिकली, politically, and of course from strategic point of view. Thank you so much. Thank you so much Mahabhinishkaram, thank you so much Rahul, Vishal, ma'am, thank you so much for joining this session. अगर आपको पसंद आया है ये सेशन तो do share it with your friends and help me grow, help me reach out to other people, help me grow. Do share this session with as many people in your friend circle as possible. Knowledge share करने से knowledge बढ़ती है, right? And of course promote this code guys, Y580 अड्डा 247 में बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोड चाहिए, कोई भी कोर्स परचेज करना है, इफ यू विल यूज Y580 यू विल गेट अ 77% ऑफ गाइस, आपको 77% ऑफ मिलेगा। सो यस विशाल, डू आस्क। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन विशाल। फिलहाल आप Y580 कोड प्रमोट करोगे तो 77% ऑफ जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितनी भी ई बुक्स और टेस्ट सीरीज, उनका जो कंबाइंड पैकेज है उस पर 77% ऑफ मिलेगा। बट इफ एनीवन वांट्स टू ओनली बाय टेस्ट सीरीज प्लस ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स खरीदनी है तो उसके लिए कोड क्या यूज होता है? Y580S। उसके लिए कोड यूज होता है गाइज Y580S। Thank you. Yes, please promote this. Ma'am, will you please make a video on LRS? Yes, liberalized. I remember Vishal, you asked this question. तो ठीक है, LRS पे वीडियो कल बना दूंगी मैं।
ओके कल का सेशन पक्का है. इट विल बी अ वीडियो ऑन LRS. यू हैव आस्क्ड दिस बिफोर ऑल्सो, आई वेरी वेल रिमेंबर. आई हैव अ लॉट ऑफ अदर सेशंस, RIB के करंट अफेयर्स भी देखने होते हैं, तो यस ओके वी विल, कल एक सेशन हो जाएगा RBI बुलेटिन एंड LRS पे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन गाइज. प्रमोट दिस वीडियो, help our channel grow. We as a team are putting in our best of efforts to reach out to you guys and help you in every and any possible way. So in reciprocation, अगर आप लोग हमारी भी help करोगे तो we will get motivated to do a lot better. Thank you so much. Take care. See you on the other side. Bye bye.